Hello everyone, this is CA Brahmar Jain. I'm making this video on strategy or my take on different subjects of CA final as I received a lot of queries from many students and it was not quite possible to reply to each one of them. But I personally believe that every student is different and every student has a different or unique pattern of study. So make sure to follow my recommendations only if it suits you and it is best according to your circumstances. Because what worked for me may not work for you, and I'm no teacher. And at the end, it is your strategy which would be best for you. So without any further ado, let's get started. In this video, I'll be talking my strategies and approach for the paper 1, that is financial reporting. I believe this is a subject which can be your best friend or your worst enemy. It all depends on how you handle the subject. So let's discuss one by one. So coming towards classes, I took classes of FR from Praveen Sharma sir in October 2018, that is 1 year after my articleship started, after taking classes of SFM and costing. So basically these three subjects SFM, costing and FR, I believe कि इसकी classes आपको शुरुआत में लेनी चाहिए because in all the three subjects there aren't much amendments. So you can take them earlier during articleship period and it doesn't matter the order in which you take them. And as for the material I referred, so basically I referred obviously the book of Praveen Sharma sir. So the content of the book was, it contained questions from study material as well as some diploma IFRS questions. So we were solving some diploma IFRS questions in classes and I solved some of them in first reading, but second reading say I outrightly ignored them. So I would suggest the same key diploma IFRS questions and GFRS questions, all these are not very important from exam point of view. So for material, study material itself is enough, and obviously that goes without saying कि RTPs, MTPs and questions from past examination paper of new course, these are all mandatory. मतलब ये सब material तो आपको refer करना ही है. So material में all institute materials is enough, and also one PDF came of COVID impact on Ind AS, तो उससे एक RTP में क्वेश्चन आया था. तो you can refer that PDF if you have extra time, or you can refer summary of Bhavik Choksi of that same PDF. अच्छा, one point about classes is that I've seen that many students in Praveen Sharma sir take printout of LMS and they don't make their own notes. मतलब LMS लेके बैठ जाते हैं, and even of some other teachers, like what they do is take print photocopy the notes of other student and they don't write in classes, just see. तो believe me friends, if you don't make your own notes, PL में आपको ये notes देखने का मन ही नहीं करेगा. तो make sure to make your own class notebook and also make sure to complete your class notebook. मतलब even if you leave classes, मतलब आपके कुछ classes leave हो जाते हैं, तो next class में आके make sure to complete your notebook. और कम से कम पूरी क्लासेस ख़त्म होने के बाद बिफोर एंड ऑफ क्लासेस मेक श्योर कि आप किसी ना किसी फ्रेंड से कॉपी लेके आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं. बिकॉज बिलीव मी, मेरे एक दो चैप्टर्स ऐसे छूट गए थे, लाइक 116 एंड ऑल, तो मुझे प्रिपरेशन लिए में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े थे. तो मेक श्योर दैट योर कॉपी इज़ कम्प्लीट एंड ऑल्सो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द क्लासेस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर्ड, 100% क्लियर्ड. ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिसमें आपको डाउट हो रहा है या कुछ हो रहा है. तो मेक श्योर कि ऑल योर कंसेप्ट्स ड्यूरिंग द क्लासेस आर क्लियर. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द PL. तो बेसिकली शुरुआत में आप FR लिए रहते हैं, तो उसके बाद आर्टिकलशिप एंड देन ऑल अदर क्लासेस. तो बाय कमिंग टुवर्ड्स द PL एवरीथिंग इज़ वाइट वॉश्ड. मतलब इट्स ऑब्वियसली नॉर्मल, सबके साथ ऐसा होता है. तो डोंट पैनिक. जब PL में आप पहले उठाएंगे FR तो आपको कुछ याद नहीं आएगा. सो हेयर्स वेयर योर कॉपी कम्स इनटू द प्ले. मतलब आपकी कॉपी के जो कंसेप्ट के नोट्स लिखे रहते हैं उसी से आपको सब कुछ रिकॉल होगा. तो इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ यू हैवेंट मेंटेन्ड अ गुड कॉपी तो आपको काफ़ी दिक्कत जाएगी PL में. सो मेक श्योर टू हैव अ गुड कॉपी. व्हाट हैपेंड वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी अ वीडियो ऑफ प्रवीण जिंदल सर विच कंटेन्ड कैटेगरीज ऑफ Ind AS. मतलब लाइक एसेट रिलेटेड Ind AS, liability related Ind AS, miss related Ind AS and then theory Ind AS. So I took the chapters in block of that categories. So I think कि उससे काफ़ी ज़्यादा help हो जाती है because many indices are interrelated. So I'll be sharing the link or probably the category somewhere around here. So मैंने उस हिसाब से उस sequence में सारे इंडेक्स को टैकल किए. And as for the big chapters like business combination, CFS etc., you can take them either at the beginning or at the end. That totally comes down to your personal preference.
सो व्हाट वाज माय अप्रोच वाज लाइक, अगर मैं कोई एक इंडेक्स पकड़ता था, so first I used to go through my class notebook concept notes, then I used to solve all the questions of my teacher's book, then I used to solve all the illustrations and test your knowledge questions of SM, then I used to read the theory of SM, as in टॉपिक्स देखता था कि हाँ ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक कवर्ड है, ऑलरेडी कवर्ड है तो ठीक है. जो नए टॉपिक्स होते थे तो आई यूज टू गो थ्रू दैम. एंड ऑल्सो आई हैव सीन दैट मतलब इलस्ट्रेशंस के अलावा एग्जाम्पल्स भी होते हैं. तो अगर तुम्हारे पास टाइम है सो आई वुड रिकमेंड कि गो थ्रू दैट एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ऑब्वियसली नॉट छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, लेकिन जो थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक इफ यू विल सी इन चैप्टर्स लाइक CFS जिसमें एसोसिएट का ट्रीटमेंट होता है, तो उसके एग्जाम्पल से ही हमारे RTP में क्वेश्चन आया था, एंड दैट RTP क्वेश्चन केम इन आवर एग्जाम्स. And this also happened in November 19 exams, I believe. Example of some Ind AS 21 came in exam. So I think कि examples भी आपको go through करने चाहिए, मतलब छोटे छोटे वाले miscellaneous नहीं, थोड़े बड़े बड़े जो आपको important लग रहे हैं. So that was my approach. And after going through a particular Ind AS, ये सब जो मैं आपको बताया, ये सब करने के बाद I used to summarize the whole Ind AS in 1 or 2 pages, as in not the questions, only the concepts. एंड द समरी वुड बी ऑफ सच सॉर्ट कि नेक्स्ट रीडिंग में मैं अपनी क्लास की नोटबुक को रेफर नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी समरी नोट्स रेफर करता था, एंड देन आई यूज्ड टू गो टू द क्वेश्चंस. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ये एक्सरसाइज कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल मतलब लाइक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है. सो दिस इज हाउ आई टैकल्ड एवरी सब्जेक्ट, every chapter, and obviously you have to filter out the questions. I think that goes without saying. मतलब ABC analysis, like irrelevant questions को C mark कर दो, एंड नेक्स्ट रीडिंग में जो तुम्हें पढ़ना है उसको B और A मार्क करो. बट मेक श्योर कि जो एकदम ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक एक मार्क करके रखो, फॉर लाइक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मार्क करके रखो. अदरवाइज आपको नेक्स्ट टाइम लगता है यार ये तो हुआ नहीं कवर, तो अब देन यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. तो ABC एनालिसिस गोज विदाउट सेइंग. And as far as revisions are concerned, so my readings are concerned, so I took PL of 6 months, in which 1 month was like for MCS and ITT. So first reading मेरी FR का मैंने target रखा था 15 days, and it got completed in around 16 days. तो but I was quite inefficient that time क्योंकि वो PL का शुरुआत का period था. तो ideally 13 to 14 days should suffice for first revision. For second revision I allocated 6 days in FR. And third revision तो आया नहीं, the pandemic struck, but ideally third revision should be given 3 days in FR. And obviously I would say कि जब आप third revision तक पहुँच जाते हैं तो FR is first subject. तो आप उस टाइम अपने circumstances के हिसाब से जज कीजिए कि whether you require third revision or you can extend the preparation time for first subject. मतलब अगर FR को आप 3 दिन देने वाले थे तो you can club that together and उसको 6 दिन दे सकते हैं, and you can skip the third revision. That totally depends on your position at that point of time. एंड ऑल्सो फॉर लाइक स्मॉल Ind AS जो होते थे ना, लाइक Ind AS 2 हो गया, Ind AS 8 हो गया. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, इनकी जब समरी बनाता था तो इन द समरी इटसेल्फ आई यूज्ड टू राइट दी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब एक एक लाइनर के कि क्या क्या पॉइंट्स थे क्वेश्चन में. तो लाइक Ind AS 8 में भी आप देखेंगे तो सारे सर्कमस्टांसेस लिख दीजिए कि किस किस में एडजस्टमेंट वगैरह चाहिए. तो ऐसे करने के बाद आई डिडंट यूज टू रिफर द क्वेश्चंस एट ऑल, मतलब सिर्फ समरी पढ़ा, समरी में क्वेश्चंस का जिस्ट पढ़ लिया, एंड देन आई यूज टू प्रोसीड फॉरवर्ड. तो कहीं ना कहीं दिस प्रैक्टिस करने से यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन टर्निंग डाउन द पेजेस. तो स्मॉल Ind AS में यू कैन फॉलो दिस अप्रोच. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज Ind AS आर ऑल इंटरट्वाइंड, दैट वी ऑल नो. सो जब भी आप आगे Ind AS पढ़ते हैं एंड यू फाइंड समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस Ind AS विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो मेक श्योर टू मेक अ रेफरेंस इन बोथ द Ind AS. मतलब आप पीछे भी वो Ind AS में जाके ये पॉइंट लिखिए कि ये Ind AS में इसका कनेक्शन था. तो कहीं ना कहीं आप जिससे लिंकेजेस बनाते हैं ना, तो नेक्स्ट रीडिंग में आपका जो लेवल ऑफ कम्फर्टनेस है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है. कोटिंग एन एग्जाम्पल लाइक वो नहीं होता अपने CFS में कि सब्सिडरी एंड होल्डिंग की सेम पॉलिसीज होनी चाहिए थी, तो देयर इज अ क्वेश्चन दैट वेदर डेप्रिसिएशन शुड SLM WDV फॉलो करते तो क्या करना है. देन वी गो टू Ind AS 16 दैट नो डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग एस्टिमेट, सो वी डोंट नीड टू एडजस्ट. तो ऐसे टाइप के जो लिंकेजेस होते हैं ना, तो अगर आप दोनों तरह रेफर करेंगे तो एक अलग लेवल ऑफ कंफर्ट आता है. एंड ऑल्सो Ind AS 101 के जो क्वेश्चंस थे ना, और जो मतलब लाइक कंसेप्ट्स थे, वो प्रवीण शर्मा सर ने तो रिलेवेंट Ind AS में कवर करवाए थे, बट कुछ टीचर्स नहीं करवाते. तो आई वुड एडवाइस कि आप उसको रिलेवेंट Ind AS के साथ ही पढ़ें, अदरवाइज 101 इन इटसेल्फ बिकम्स अ लाइक लार्ज टॉपिक और बिग सब्जेक्ट, और उसको टैकल करने में प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज आपने पहले वो सारे Ind AS पढ़े होते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारे Ind AS के साथ रिलेवेंट पोर्शन ऑफ 101 पढ़ते रहें. And also try to remember the name of the paras D7AA, D5, D7, because
बेसिकली बस 5-6 पैराज हैं ऐसे, और अगर आप इधर लर्न नहीं करेंगे ना, सो यू वुड ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज इन डी टी में भी इसका मैट एडजस्टमेंट में इनका रेफरेंसेस आता है। तो अगर आप ये पैरा नंबर याद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जाएगी। सो इट्स क्वाइट ईजी, तो बट जस्ट अ टिप कि मेक श्योर टू लर्न देम। सो कमिंग टू द 3 बिग चैप्टर्स ऑफ FR, मतलब आई बिलीव ओनली 3 ही बिग चैप्टर है। वन इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अदर इज CFS प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज 115। 116 इज़ अ बिग चैप्टर, बट आई बिलीव अगर आप उसको फर्स्ट टाइम अच्छे से करते हैं ना, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपकी और उसके सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए, तो नेक्स्ट रीडिंग में 116 उतना टाइम नहीं खाता आपका। सो कमिंग टू द 3 बिग चैप्टर्स, 115 इज़ लाइक ऑब्वियसली थियरी ओरिएंटेड। तो मैंने इसकी काफ़ी कंप्रहेंसिव समरी बनाई थी थियरी की इन ऑलमोस्ट 4 पेजेस। तो आई वुड रिकमेंड द सेम कि उसकी थियरी की तो काफ़ी अच्छी समरी बनाई है, और ऐसा मत कीजिए कि बस इलस्ट्रेशन के बेसिस में जो थियरी आ रही है बस वही। मेक श्योर टू कवर होल इंडेक्स, इट्स अ रिसेंट इंडेक्स, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। But somewhere I have seen that institute it's focusing on that allocation of TPO, transaction price वाला की allocation of transaction price to different performance obligations, तो उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। As for consolidated financial statement, तो उसमें तो I would recommend कि अपनी summary में एक format बना लीजिए, as in format a very comprehensive format, जो different working notes होते हैं ना, working note 1 statement of INA, calculation of goodwill, so make a format सच फॉर्मेट कि इसमें सारे चीज़ें कवर्ड है, सारे एडजस्टमेंट्स की सारी रिलेवेंट पॉइंट्स कवर्ड है। तो वो फॉर्मेट को आपको ग्लेंस करने से सब कुछ आइडिया हो जाएगा। एंड मेक एडजस्टमेंट के ऑब्वियसली पॉइंट बनाने आपको कि जो यूनिक पॉइंट्स हैं उसको लिखते जाइए और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आंसर में। तो ऐसे करके आप नोट्स बना लेंगे ना, तो बिलीव मी CFS लिटरली मतलब 2-3 क्वेश्चंस बस करेंगे आप एग्जाम टाइम में, इट वुड गेट ओवर। तो CFS बिकम्स वेरी इजी अगर आप इस स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो एज इन एक कंप्रहेंसिव वर्किंग नोट बना लेते हैं, तो फॉर्मेट उसका बना लेते हैं। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द थियरी ऑफ एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, कंट्रोल की डेफिनेशन वगैरह, दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट। बिजनेस कॉम्बिनेशन की आई बिलीव कि समरी बनाना इज़ नॉट मतलब रिकमेंडेड। उसमें क्या है कि काफ़ी सारे यूनिक कंसेप्ट्स है और लिमिटेड क्वेश्चन है, लाइक 20 to 25 क्वेश्चन, तो जस्ट मेक श्योर टू गो थ्रू विद देम। कमिंग टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की भी मैंने एक कंप्रहेंसिव समरी बनाई थी, बट व्हाट आई फाउंड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाज कि उसकी जो शुरुआत की जो थियरी होती है ना, थियरी के लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ FA, FL और डेरिवेटिव लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है अपना, मतलब उसके जो 50-60 क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फर्स्ट रिवीजन में तो मैंने उसको पूरा किया था, लेकिन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, तो मैंने उसको कट डाउन कर दिया टाइम। मैंने सेकंड रिवीजन में ऑलमोस्ट उसको इग्नोर ही कर दिया था। बट व्हाट हैपेंड वाज कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में 5 मार्क का, एंड आई कुड नॉट अटेम्प्ट इट परफेक्टली। बट देन ऑल्सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से, एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन दैट क्लासिफिकेशन। मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, उसके जो कंसेप्ट है उसको आप अपने समरी में लिख लीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। एंड कहीं ना कहीं आप पास्ट एनालिसिस देखेंगे तो आज तक सिर्फ वही बेसिक क्वेश्चन आता है, स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी और लाइबिलिटी। ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। फिर भी थियरी यू कैन एक मतलब थोड़ा कम फोकस रख सकते हैं इसकी थियरी में। सो दैट वाज अबाउट माय स्ट्रेटजी ऑफ हाउ आई टैकल द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द PL। एंड नाउ अच्छा, मॉक टेस्ट। सो बेसिकली आई सॉल्व्ड 1 मॉक टेस्ट ऑफ FR, एंड आफ्टर सॉल्विंग 1 मॉक टेस्ट आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ टैकल हो जाएगा, मतलब आई सॉल्व्ड MTP ऑफ इंस्टीट्यूट, सो आई डिडंट प्रोसीडेड टू सॉल्व फर्दर MTPs। आई वुड रिकमेंड कि आप सब भी पहले एक MTP सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है देन गो ऑन टू सॉल्व 2 और मोर MTPs। और MTPs से बेटर ये है कि आप पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करें, तो कहीं ना MTPs इंस्टीट्यूट की बहुत ईजी होती है, जबकि एग्जाम क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक लेवल अबव होता है। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह रिफर करनी है तो दैट्स योर पर्सनल चॉइस। एंड कमिंग टू एग्जाम्स में तो बेसिकली मैंने जो कहा उसके अगेंस्ट ही आप सब कुछ करना, मतलब उल्टा ही करना। मेरी एग्जाम्स वर नॉट सो परफेक्ट ऑफ FR में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ऑफ माइन वाज FR, लेकिन हमारे अटेम्प्ट तक हर अटेम्प्ट में लाइक 100% ऑफ पेपर यूज्ड टू कम फ्रॉम स्टडी मटेरियल और इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज, बट दिस टाइम इट वाज नॉट सच। तो बेसिकली थोड़ा सा पैनिक हो गया था मैं FR का पेपर देख के। सो फर्स्ट सजेशन इज कि FR के पेपर में हर क्वेश्चन को A to Z पढ़िए डिटेल में, फिर ही आपको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है। As in, don't assume the question to be very easy or either very hard before reading the full question.
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था CFS का, उसे फर्स्ट टाइम में देखा तो लगा था सो बेसिक क्वेश्चन, मतलब CFS का डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने देखा ही नहीं था कि इसमें हमें ओपनिंग जो फिगर दी हुई वो 2017 की दी हुई है एंड द बैलेंस शीट वाज ऑफ 2019। मुझे मिडवे थ्रू द क्वेश्चन रियलाइज हुआ कि ओ शिट, ये तो ऐसा है, डिफॉल्ट टर्म सिचुएशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, समथिंग समथिंग। देन आल्सो इट वाज क्वाइट ओके क्वेश्चन, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ मतलब मैंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, दैट्स व्हाई आई मेड अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक, और मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ दिया। बेसिकली 115 का क्वेश्चन आया था, मॉडल पीआई वगैरह समथिंग, ऑल वी हैड टू डू इन दैट क्वेश्चन वाज एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू डिफरेंट पीओ। लेकिन उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा था ना कि मॉडल पीआई और बिजनेस कंपनी, तो वो मैं देख के घबरा गया। सो बेसिकली आई मेड अ बैड चॉइस एंड लेफ्ट दैट क्वेश्चन। सो माय रिकमेंडेशन इज कि एफआर के पेपर में आप इस पूरा क्वेश्चन ए टू जेड एकदम अच्छे से पढ़िए और कामली पढ़िए। Also, in the description below, you can find a link of Google Drive which contains my scanned notes or the summaries I made of the subject, so you can refer them. But my personal advice would be make your own notes or summary. Just use my notes as a reference on how to make summary, or obviously you have a better knowledge of how to make summaries that you would understand in future. So thanks for watching this video. You can comment if you have any specific queries related to the subject, and have an awesome day. Goodbye.